Hello viewers, I am Jagannath and you are watching my channel Jagannath Technical Classes. Today we are start the analytic method to find the resultant of coplanar concurrent forces. The resultant of coplanar concurrent forces. In our previous class we are already discussed there are three sub methods of analytic method, and first one is the parallelogram law of forces, second one is the resolution of forces, and third one is the what? The composition of forces. Then come to the first analytic method, and that is most important one because every year 2 or 3 questions asked in OJEE entrance examination. So I am trying my best to describe thoroughly. Then come to the parallelogram law of forces. So parallelogram law of forces states that if the two forces represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant must be represented there what? The diagonal. तो सपोज आमे कौन कले ना गोटे पैरेललोग्राम ड्रॉ कले आउ तारो देन नेमिंग देले कौन ना ओ ए बी आउ डी. Then according to this law, when the two forces represented by the two adjacent sides of a parallelogram, here the adjacent sides means the sides which are making an angle is known as what? The adjacent sides. तो आमे को दुईटा भी adjacent sides नहीं परिबा, तो आमे OD OA भी नहीं परिबा, AB BD भी नहीं परिबा, आमे ए एंगल नहीं परिबा, ए एंगल नहीं परिबा, ए एंगल नहीं परिबा कि ए एंगल भी आमे नहीं परिबा. बट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पाई मु कोन करछि ना ए एंगल नौछि. ठीक. So if the two forces represented by their two adjacent sides, तो जदि two forces represent करिबो काहाकू ना दीटा adjacent sides कहारो ना parallelogram रो दीटा adjacent sides को represent करिबो, then their resultant must be represented by their what? The diagonal. ना resultant को किए सूचेबो ना diagonal सूचेबो. ठीक. But here a important note, remember always that parallelogram law valid for only coplanar concurrent forces. तो parallelogram law टा कहाँ पाए valid? खाली coplanar concurrent forces. So what is coplanar concurrent forces? These are the forces which passing through a single point and acting in a single plane is known as what? The coplanar concurrent forces. तो एथिरे जो पॉइंट रहला concurrent पॉइंट दा सेही पॉइंट जो कोडा ना सेटा ओ रे सेही पॉइंट टा रहिछि. ठीक. तो एई पॉइंट देखि दीटा फोर्स पास करछि, गोटे होछि OA फोर्स, सपोज याको देली मु P, आ OD फोर्स सपोज याको देली मु कोन ना Q. ठीक. आ एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस याको देली मु कोन ना थीटा. ठीक. आ ए जो रिजल्टेंट जो इंक्लिनेशन करछि ताको मु देली कोन ना अल्फा, where alpha is the what? The inclination of resultant. But broad question arises, how many number of forces are used? So always remember that we can find the resultant for only two forces. खाली केटा forces पाई हमें parallelogram यूज करके हमें resultant बाहर करि परिबा ना दीटा फोर्स हमें यूज करके ही हमें कौन बाहर करि परिबा ना resultant. जदि मोर देन टू फोर्सेस थाए तो हमें parallelogram को यूज करि परिबा नाही. So parallelogram law of forces valid for only two forces not greater than two forces. तो एटा सबले मन रखिबो. तो हमको फाइनली फाइंड करियर अछि कोन ना रिजल्टेंट. आउ सबे बोले मन रखिबा जदि किछि ज्योमेट्रिकल फिगर र क्वेश्चन आसुची तो ताकू हमें राइट एंगल ट्रायंगल ले कन्वर्ट करिबा, डायगोनल पाइबा को चेष्टा करिबा. ठीक. तो पाइथागोरस लॉ र वैलिडेशन पाई आमे कोन कले ना फर्स्ट इंक्रीज द साइड ऑफ बेस, आमे कोन कले ना बेस को हमें इंक्रीज कर देले, देन ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी पॉइंट, देन ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी पॉइंट ऑन द बेस ऑफ ओए. तो तार नेम देले कोन ना सी हैला. तो एबे गुटे ये कोथरे रिप्रेजेंट हे गला ना ओबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. आउ राइट एंगल ट्रायंगल को हमें को मेथड देके सॉल्व करिवा ना हमें पाइथागोरस लॉ रे हमें कोन करिवे ना सॉल्व करिवा. तो फाइनल सेतरु हमें कोन बाहर करिवे ना रिजल्टेंट बाहर करिवे. ठीक. जेहेतु फिगरटा गुटे पैरेललोग्राम तो एठी कोन ना एठी P फोर्स अछि, तो एई फोर्स रे एठी भी कोन लागिवो ना P फोर्स लागिवो. ओडी रे अछि कोन Q फोर्स, तो AB भी को फोर्स नेबो ना Q फोर्स नेबो. कोन पई ना हमें जान छी कोन ना ई पैरेललोग्राम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन
both opposite sides have the equal magnitude and direction. तो आमे एमती कहि परिबानी कि आमे adjacent sides रो फोर्स केबे इक्वल करि परिबानी बट opposite sides रो फोर्स कोन करि परिबा ना इक्वल करि परिबा ठीक। तो एबे देखो एठी जो आमे पाइले कोन ना फिगरटा एबे कहा सहित इक्वल हे गला ना एठी जो फिगर अछि डायरेक्ट इक्वल अछि कोन पई ना हमको फाइनली कोन करिया अछि ना डिस्क्रिप्शन करिया अछि कोन पई ना रिजल्टेंट बाहर करिया पई ठीक। तो ठीक तो आमे एबे मन रखिले कोन गले को ना दुईटा फोर जदि दुईटा एडजसेंट साइड को सूचेबो तार रिजल्टेंट कोन सूचेबो ना रिजल्टेंट का तार डायगोनल सूचेबो कहार तो गोटे पैरेललोग्राम रो डायगोनल सूचेबो ठीक। तो आमे ए स्टेप रे फास्ट कोन कले को ना ओए को आमे फास्ट इंक्रीज कर देले आ बी रो गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉप पकेले तो कोठी पडिला सेटा ना ओए रो बेस रे पडिला तार नेम देले कोन ना सी आ बिकॉज ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ तो ये जदि थीटा हला तो ये भी कोन हबो रियली थीटा ही हबो ठीक हो। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओबीसी मुठी ओबीसी कोन पाई नेली देखो जदि हमें ओबीसी ट्रायंगल जदि नेबा बा राइट एंगल ट्रायंगल जदि नेबा तो हमें कोन काढी परिबा ना रिजल्टेंट काढी परिबा को लो पकी की ना सबले मन रखिबो ना पाइथागोरस लो पकी की। तो इन ट्रायंगल ओबीसी हमें कोन देखु जे को ना ओबीसी जे व्हाट द राइट एंगल ट्रायंगल तो मु कहि परबी कोन ना ओबी रो होल स्क्वायर इक्वल टू ओसी रो होल स्क्वायर प्लस बीसी रो होल स्क्वायर imply that OB equal to OC whole square plus BC रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर। तो फाइनली हमें जानछि OB बा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम का को रिप्रेजेंट करछि ना रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करछि। तो डायरेक्ट हमें लिखले कोन ना R इक्वल टू एबे आसिला OC OC टा होछि कोन ना दीटा हमें कोन ना पॉइंट को हमें दीटा हमें बेस साइड को हमें ऐड कर जे का को कहबा ना OC को पाइबा दैट इज द OA प्लस AC OA प्लस AC रो होल स्क्वायर प्लस BC रो होल स्क्वायर इंप्लाई दैट R इक्वल टू हमें जानि कोन ना A प्लस B रो होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट द A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये सेमती हे गला कोन ना OA रो होल स्क्वायर प्लस AC रो होल स्क्वायर प्लस 2 into OA into AC प्लस BC रो होल स्क्वायर फाइनल रूट ठीक। तो इक्वल टू OA कहा को रिप्रेजेंट करछि ना OA साइडटा फोर्स P को रिप्रेजेंट करूछि। तो डायरेक्ट मु लिखली कोन ना P स्क्वायर प्लस AC रे किछि हमें देइनी प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्ट मु लिखली कोन ना AC रो होल स्क्वायर जोटा में लेटर फाइंड करिवे ना 2 into पुणी आसला OA OA केते नैचे ना P नैचे into AC टा सेमती हमें किछि नेई ने एबे आसला BC BC भी हमें किछि जानि ओके। तो फाइनली अननोन की रहले ना फाइनली अननोन रहले कोन पई हमको जो क्वेश्चन रे जो दिया हेतिबो सेतरे निहाती भाबरे दुईटा फोर्स थिबो आ गुटे एंगल थिबो ठीक। बट एतरे फोर्स देखो खाली ओनली P रहला Q आछि कि ना Q आछि लेटर आसीबो ठीक। तो एतरे अननोन के रहले एतरे अननोन रहले AC आ BC तो सेटा हमें फाइंड करबा कोठी ना ए राइट एंगल ट्रायंगल BAC रे ठीक। तो एबे नेले हमें कोन ना राइट एंगल ट्रायंगल ABC और ये हला हमरो एंगल कोन ना थीटा और हमें AB कोन जानि छे ना बिकॉज ऑफ द पैरेललोग्राम ये यदि P हला तो ये भी कोन हबो P हबो कोन पई अपोजिट साइड मु आगुरु कहिछि ना इक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नबो तो ये Q हला तो ये भी कोन हबो ना ये भी निश्चित भाव रे Q ही हबो ठीक हो। तो या को कोन पाइले हमें Q हला। तो एबे हमको पाइबार अछि कोन ना AC को फाइंड करिवार अछि आउ BC को हमें फाइंड करिवार अछि हला। तो हमें अगेन पाइथागोरस लॉ रे जोटा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रे पढी थिबे ना कोन ना हमें जानि छे cos थीटा पुट करिवा कोन ना cos थीटा ना कोन भाई को ना एथरे अननोन अछि AC BC बट नोन अछि कोटा AB दैट इज द फोर्स Q
आ यदि फोर्स आउ एंगल हमको जना अछि तो हमें एसी और बीसी साइड आराम से बाहर करि परिबा कोन केमती ना यूजिंग द पाइथागोरस लॉ। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रे पढिथिबे कोन ना cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट AC बाय AB। तो फाइनली हमें AC कौन पाई गले ना AB cos थीटा। तो AB टा होची कौन ना AB टा होची Q cos थीटा। ठीक तो मु आगुरु कहछि कौन ना रिजल्टेंट फाइंड करिया पई हमको दीटा फोर्स और एंगल निहाती भाबरे दिया है थिबो। ठीक तो फोर्स को हमें अननोन किए एठी किए अननोन रहला कि ना एठी केही भी अननोन नाही कोन पई हमको थीटा भी दिया हैतिबो आ Q भी एठी दिया हैतिबो। ठीक तो AC टा हला कौन ना Q cos थीटा सेमति बाहर करबा कौन ना BC। तो BC पाया पई हमको कौन नबाको पड़िबो ना sin थीटा नबाको पड़िबो। तो sin थीटा इज इक्वल टू कौन BC बाय AB। तो फाइनली BC इज इक्वल टू कौन हेगला AB sin थीटा। तो AB इज इक्वल टू पुनी कौन जानचे हमें ना AB इज द फोर्स Q sin थीटा। ठीक तो हमें AC पाई गले कौन Q cos थीटा और BC पाई गले कौन Q sin थीटा। या को हमें पकेबा कोठी ना जो हमें रिजल्टेंट जो हमें बाहर करथिले सेठी हमें पकेबा। ठीक देन हमें पाइले कौन ना AC पाइले केते ना Q cos थीटा BC पाइले कौन ना Q sin थीटा। ठीक R इज इक्वल टू कौन हेगला ना P स्क्वायर AC केते पाइले ना Q cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू अगेन AC केते ना Q cos थीटा प्लस BC केते पाइछि Q sin थीटा रो होल स्क्वायर। ठीक इक्वल टू इम्प्लाई दैट R इक्वल टू तो ये हेगला कौन ना P स्क्वायर प्लस तो ये हेगला कौन ना Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये कौन हेगला ना 2PQ cos थीटा प्लस ये हेगला Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होल। ठीक देन हमें कौन करिवे ना Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आउ Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को पाखा पाखी रखिबे कोन पई को ना एठी Q स्क्वायर कॉमन जाई परिबा आउ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रे पढ़िथिले कोन ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कोन पढ़िथिले ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोन ना 1। ठीक तो नेक्स्ट स्टेप कोन हिकला ना हमें Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा या को पाखा पाखी रखिबा तो P स्क्वायर Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को पाखा पाखी रखिबा कोन पई ना कॉमन नबा पई 2PQ cos थीटा। ठीक तो बे नेक्स्ट स्टेप कोन हिजबो ना हमें कॉमन नबा तो इम्प्लाई दैट R इज इक्वल टू कौन हिगला ना P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉमन गला रहला कौन ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा होल रूट ओवर। ठीक तो फाइनली कौन पाइले हम जानले कौन ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। तो फाइनली हमारा आंसर बहला कौन ना P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा।
तो ये है कौन ना आमर रेजल्टांट रो फॉर्मूला तो सेटा होची कौन ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा कौन पाई ना रेजल्टांट पाया पाई हमको टू फोर्सेस गिवन थिबो आउ तो एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस गिवन थिबो तो सेटा होची थीटा तो पी क्यू आउ थीटा दिया है तो हमें कौन पाई परिबा ना रेजल्टांट पाई परिबा दैट इज व्हाट द पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा तो एई फॉर्मूला सबले रिमेंबर करबा कौन पाई ना हमको एतरे प्रॉब्लम आसीबर अछि मेनली फॉर सेमिस्टर एग्जाम यार 7 मार्क्स रो कोन आसे प्रॉब्लम आसे को 10 मार्क्स रो भी प्रॉब्लम आसीबर चांसेस अछि आउ या कोथरे ना ओजेई एंट्रेंस पाई भी मोस्ट प्रोबेबली कोन पाई यार डायरेक्ट फार्मूला टा किछि आसीबनी जोटा में वेरियस केसेस पडिबा लास्ट को से केसेस रो आसीबर चांसेस अछि कोठी ना ओजेई एंट्रेंस एग्जाम ठीक तो एई फॉर्मूला टा बेसली तमे डेरिवेशन मने रखो कि न रखो एई फॉर्मूला टा बेसली तमे मने रखिबा व्हाट इज दैट इज the resultant equal to what the p square plus q square plus 2pq cos theta ठीक हो तो आमे एठी रिजल्टेंट बाहर कर दिले देन हमें कोन बाहर करबा ना एठी आउ गुड जिंस बाकी रहि गला सेटा होची कोन ना द इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द बेस आइदर ए जो रिजल्टेंट एंगल टा ये बेस रु भी हे पारे आउ साइड्स रु भी हे पारे ठीक बुझिला जदि हमें बेस रु बाहर कले साइड्स रो केंति बाहर करबा थीटा रु माइनस कर दबा देनी पाई जिबा होना नहीं थीटा माइनस अल्फा कले कोन ए एंगल टा पाई परबानी तो हमको क्वेश्चन किछि भी पचारि पारे तो विथ रेस्पेक्ट टू बेस पचारि पारे विथ रेस्पेक्ट टू साइड पचारि पारे से व्हाट एवर किछि भी पचारि पारे ठीक हो तो हमें एंगल ऑफ एबे हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू ओनली हमें बेस बाहर करबा ठीक तो नेक्स्ट हमें कौन बाहर करबे ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट दैट इज व्हाट द अल्फा ठीक तो अबे अल्फा बाहर करिया पई पुणी हमें को लो स्टार्ट करबा ना पाइथागोरस लॉ को स्टार्ट करबा तो अल्फा टा को ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल अछि ना ओबीसी राइट एंगल ट्रायंगल अछि तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओबीसी तो हमको पाइबार अछि कोन ना अल्फा ना ए एंगल पाया को हेले हमें को दुईटा साइड नबा ना ओसी और बीसी साइड को नबा तो हमें जान जे कोन ना एसी आ तार बेस आउ हाइट को नै कि हेले को फार्मूला हम ट्रिग्नोमेट्रिक रो को फार्मूला दरकार ना tan थीटा फार्मूला दरकार तो tan थीटा तो tan थीटा लिखि परबनी कोन लिखि परबा ना tan अल्फा तो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट तो बीसी बाय ओसी ठीक तो एटा रिमेंबर ऑलरेडी जानिबा कथा जे जदि हमर कोन अछि को पी बी और एच दिया है तो tan थीटा इज इक्वल टू कौन ना p बाय b sin थीटा इज इक्वल टू कौन ना p बाय h और cos थीटा इज इक्वल टू कौन p बाय h बस एतिकी जिन सब मन रखियार अछि ठीक हो तो इंप्लाई दैट tan अल्फा इज इक्वल टू कौन हे गला bc हमें आगु जान छी कौन ना q sin थीटा बाय ओसी कौन जानचे ना समेशन ऑफ टू साइड्स ओए एंड एसी ओए एंड ओसी तो ओए टा केते अछि पी अछि प्लस एसी टा केते दिया हैछि ना क्यू sin थीटा सॉरी क्यू cos थीटा ठीक बट हमको बाहर करबेरा कोन अछि ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज द अल्फा तो अल्फा इज इक्वल टू कौन हे गला tan इनवर्स q sin थीटा बाय p प्लस q cos तो ये है गला हमर कौन ना अल्फा दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन द फार्मूला तो एथरे अननोन किए देखो p q थीटा जोटा हमको गिवन देथबो प्रॉब्लम रे ठीक तो एठी मोर आ गुटे क्वेश्चन रहला जदि अल्फा टा कोन हेतांता ना विथ रेस्पेक्ट टू ओए न हे कि विथ रेस्पेक्ट टू ओडी हेतांता एठी जो अल्फा टा बाहरला कोन सेटा ना विथ रेस्पेक्ट टू ओए फोर्स हला विथ रेस्पेक्ट टू ओए और फोर्स p बट हमें बाहर करबा कोन ना विथ रेस्पेक्ट टू ओडी और फोर्स q तो एबे कोन हबो जदि विथ रेस्पेक्ट टू ओडी हे जिवो तो कोन हबो यार सिंबल सब सॉरी यार लेटर सब चेंज हे जिवो q हे जिवो p p हे जिवो q तो अल्फा इज इक्वल टू नहीं परबा कोन ना tan इनवर्स p sin थीटा बाय
Q plus P cos theta एटा केते बेले ना जदि हमको मागिची कौन ये न मागे कि जदि हमें विथ रेस्पेक्ट टू Q मागिची ठीक विथ रेस्पेक्ट टू Q मागिची with respect to Q force जोटा को साइड अच्छी ना OD साइड अच्छी ठीक with respect to OD बेस भी कहा जाय पारे OD साइड भी कहा जाय परिबो तो OD ठीक तो याको रहला केमति मने रखिबा ना अल्फा देखो जदि विथ रेस्पेक्ट टू जो भी फोर्स दिया ही थाउ ठीक तो सेही फोर्स को तुम डायरेक्टली नबनी कोटा नब ना सेही फोर्स रो ऑपोजिट फोर्सेस जी अछि से आकु देखिबो देखो मते ए फोर्स रो कोन कहिछि ना अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू पी कहिछि तो पी रो ऑपोजिट फोर्सेस हला कोन ना क्यू तो थोरे लिखिली क्यू sin थीटा बाय क्यू cos थीटा तापरे बाकी को फोर्स रखि गेला ना पी ताको कोन करली ना परे हमें ऐड कर देले पी ठीक तो ये देखो विथ रेस्पेक्ट टू क्यू फोर्स कहला तो क्यू फोर्स रो ऑपोजिट की अछि ना पी फोर्स अछि ना पी आगो आसीबो तो पी sin थीटा बाय पी cos थीटा प्लस बाकी को फोर्स रही गला तो क्यू तो एमते घुसी के मन रखिबो कोन पई हमको मेनली फार्मूला जेमते भी हो मन रखिबार अछि ठीक देन कम टू द डिस्कस सम केसेस ऑन parallelogram law forces. Then comes the first case, that is what the theta is equal to 0 degree. It means the force acting in a single line and in a same direction. तो ये मार्क करो तो थीटा केते अछि ना 0 डिग्री तो ऑब्वियसली दीटा फोर्स कोन करिवे ना गोटे डायरेक्शन रे ही रहिबे तो सपोज ये हला हमर P फोर्स आउ ये हला हमर कोन ना Q फोर्स कोन पई ना सेही गोटे लाइन व गोटे डायरेक्शन रे अछंती तो रिजल्टेंट मोस्ट भी को डायरेक्शन रे आसीबो ना रिजल्टेंट मोस्ट भी ना फोर्स जो डायरेक्शन रे अप्लाइड अछि सेही डायरेक्शन रे ही आसीबो ठीक हो तो एथिरे हम कोन बाहर करबा ना रिजल्टेंट आउ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट बाहर करबा तो हमें फास्ट जीवा रिजल्टेंट को तो हमें जान छी कोन ना r इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा तो अब हमें थीटा केते दिया है ना 0 डिग्री तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री तो कौन है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आमे जानछे कौन ना cos 0 डिग्री इक्वल टू व्हाट द 1 प्लस 2pq र होल रूट ओवर तो हमें पुणी जानछे कौन ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq ये कहार फार्मूला ना p प्लस q र होल स्क्वायर र फार्मूला रूट ओवर एबे स्क्वायर रूट आउ स्क्वायर टा कैंसिल आउट तो फाइनली केते बाहरला ना p प्लस q तो सब बेले एठी मने रखिबा ना जेते बेले द एंगल बिटवीन द टू फोर्स इज 0 डिग्री देन देयर रिजल्टेंट मोस्ट बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द टू फोर्सेस ठीक तो रिजल्टेंट दिया छै देखो हमें फाइनली फाइंड करले केते दीटा फोर्स जदी मिसै देबा तो ता का सहित समान हबो ना रिजल्टेंट सहित समान हबो ना कि हमें एठी फार्मूला पकेबा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रो रूट तो हमको बहुत शॉर्ट स्पान भितरे कोन ना मोर देन क्वेश्चन अटेंड करिवे अछि तो सेति पई जदी हमें केस को जदी हमें वेरियस केसेस को जदी हमें ठीक से मन रखिले तो हमें डायरेक्टली कोन करिवे ना ऑप्शन मारी की जाई परिबे ठीक तो एतरे जस्ट मने रखो केमती मने रखिबा ना रिजल्टेंट देखो जेतेबेले थीटा इक्वल 0 डिग्री होची रिजल्टेंट कोन ना समेशन ऑफ द टू फोर्सेस होची केमती देखो तो सपोज एठी p फोर्स निया हला तो एठी q फोर्स निया हला तो मते ऑब्वियसली को ना r फोर्स ता को डायरेक्शन रे जीवो ना ए डायरेक्शन रे जीवो आउ तार वैल्यू केते हेबो ना p जेतरे टाणीची आउ q जेतरे टाणीची दीटा को निहाती भाबरे मिसिबे ठीक जदि जदि एमती किसी एग्जांपल मन न रखि पारुछ ठीक तो एबे देखो ना गोटे पिलाडे एठी कोन करछि ना ठिया हैछि तो या को कोन करले ना दीटा पिला टानले सपोज ये हला a आउ सपोज आउ जने पिला टाणछि ये हला कोन ना b आउ गोटे हाथ तार ए साइड अछि तो मते को रिजल्टेंट इफेक्ट को वाडो को जीवो ये कोन ए डायरेक्शन को आसीबो ना ये ए डायरेक्शन केबे भी आसीबोनी को डायरेक्शन आसीबो ना तार जो डायरेक्शन रे फोर्स अप्लाई हेछि सेही डायरेक्शन रे तार कोन आसीबो ना रिजल्टेंट आसीबो कि तमे भाबुछो ना ऊपर को जीवो ना तले जीवो ना एमती किछि हेबोनी को डायरेक्शन रे ना जो डायरेक्शन रे मोस्ट प्रोबेबली फोर्सेस अछि तो सेही डायरेक्शन रे कोन जीवो ना रिजल्टेंट ता जीवो ठीक तो हमें एठी मने रखिबा कोन इफ द थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड दैट इज व्हाट the force acting in a single line and in a single same direction
then their resultant must be equal to their what, the summation of the two forces. ठीक तो देन बाहर करबा कोन ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट तो मते एबे को ना p गोटे डायरेक्शन रे थीटा गोटे डायरेक्शन रे जहार एंगल केते डिग्री ना 0 डिग्री तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट भी तमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन केते बाहरिबो ना 0 डिग्री ठीक तो एबे क्वेश्चन आतबो सर आपण 0 डिग्री डायरेक्टली केमती कर देले तो या को हमें कोन करबे ना बाहर करके देखेबे ठीक तो हमें जान छे कोन ना अल्फा इक्वल टू हमें विथ रेस्पेक्ट टू p सबले बाहर करबा ठीक तो अल्फा इक्वल टू कोन ना q sin थीटा बाय q cos थीटा प्लस p ठीक तो sin 0 हमें जानी छे कौन ना sin 0 इक्वल टू 0 आउ cos 0 डिग्री इक्वल टू केते ना 1 तो वैल्यू पकई दबा तो q हे गला q into 0 बाय ये cos 0 केते हे गला 1 हे गला तो q प्लस कौन हे गला p तो हमर न्यूमरेटर रे आसला 0 डिनोमिनेटर रे आसला केते ना p प्लस q तो इक्वल टू केते 0 तो सॉरी मु tan इनवर्स टाटी छाडी देछि tan इनवर्स लगे दबो तो tan इनवर्स 0 केते हे गला ना tan इनवर्स 0 इज द 0 डिग्री ठीक then come to the next cases the theta equal to 180 degree that is what the angle between the two forces p and q is 180 degree it means the force acting in a single line but in opposite direction the एज जिनसटा भल से मने रखिबो तो दुईटा फोर्स अछि तारो डिग्री भी तागर तो दिहेको भितर एंगल केते अछि ना 180 डिग्री तो डायग्राम टा में फास्ट कर दबा सपोज ये हला p फोर्स तो q टा कोन हबो तारो ऑपोजिट डायरेक्शन रे आसीबो तो ये हला कोन ना q फोर्स आउ थीटा टा कोन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस केते अछि ना 180 डिग्री तो हमें रिजल्टेंट बाहर करके देखिबा ठीक तो रिजल्टेंट हम जान छी कोन ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा र रूट ओवर आउ cos थीटा रे हमें वैल्यू पकेबा केते 180 तो ये हे गला p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos 180 डिग्री ठीक तो हमें जाने से कौन ना cos 180 डिग्री इक्वल टू हाउ मच -1 तो ये है गला p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq -1 तो ये कौन हो साइन टा तार चेंज हो तो फाइनली पाई गले p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq रो रूट ओवर तो फाइनली रिजल्टेंट केते पाले ना ये भी जनकर फार्मूला कोन अरिथमेटिक फार्मूला तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq इज व्हाट p माइनस q रा होल स्क्वायर रा होल रूट ओवर एबे कोन हबो ना ए जो रूट ओवर आ होल स्क्वायर कोन हिजबो ना एलिमिनेट हिजबो तो फाइनली कोन बा कैंसिल हिजबो फाइनली कोन पाई गले ना p माइनस q तो if the theta is equal to 180 degree then r is equal to केते पाइले p माइनस ठीक बुझिला कोन कहली तो एटा सब बेले में मन रखिबा जदी if the theta is equal to 180 डिग्री दिया है if k force acting in a same line but in opposite direction दिया है तो सही जगह में कोन करबा ना रिजल्टेंट केमते फाइंड करबा ना रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट द सबट्रैक्शन ऑफ द टू फोर्सेस ठीक तो एटी जस्ट रिमाइंड करबा तो ये हला हमर कोन गुटे पॉइंट अछि तो एटी p फोर्स टानुची एठी कोन करची q फोर्स टानुची ठीक तो रिजल्टेंट केमती हेबो ठीक तो रिजल्टेंट केमती हेबो सपोज p मन करो अप्लाई कला केते ना 50 न्यूटन और q केते ना 40 न्यूटन तो रिजल्टेंट के फाइनल इफेक्ट के दे परिबो ना p ही दे परिबो p ही q को कोन करि परिबो ना हटै परिबो कोन पई ना p टानची केते ना 40 न्यूटन q टानची केते सॉरी p टानची केते ना 50 न्यूटन q टानची केते ना 40 न्यूटन ठीक तो केते बेसी ना 10 न्यूटन बेसी ये जो रिजल्टेंट पाइला के जितिला ना p फोर्स जितिला केते फोर्स रे ना 10 न्यूटन फोर्स से जितिला तो फाइनल इफेक्ट केते रहला ना 10 न्यूटन ही रहला ठीक तो रिजल्टेंट इक्वल टू कोन पाई गले p माइनस q ठीक तो एबे बाहर करबे कोन ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट बट एठी कोन एठी प्रॉब्लम हे पारे कोन ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट माने करो एठी p फोर्स जदि एठी p फोर्स जितिला तो रिजल्टेंट निहाती भाबरे को डायरेक्शन रे रहइबो ना p डायरेक्शन रे ही रहइबो ठीक जदि q फोर्स जिति थांता तो q डायरेक्शन रे रहि थांता तो एठी अल्फा कहि परबे कोन ना जो डायरेक्शन रे
फोर्स अधिका थिबो तो से विथ रेस्पेक्ट टू सेही डायरेक्शन अल्फा केते हेबो 0 हेबो हला। तो आम कहि परबा कोन ना अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री with respect to greater force and alpha is equal to 180 degree with respect to smaller force। तो केमती जना पड़ला तो देखो आउ थे बुझी दूची। तो ये है हमर पी फोर्स ये है हमर क्यू फोर्स है। तो मन कर मु पी रे मु कौन करछि ना बेसी फोर्स मु प्रोवाइड करछि। तो जेहेतु मु पी रे बेसी फोर्स प्रोवाइड कली तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली को डायरेक्शन रे आसीबो ना क्यू डायरेक्शन रे ही आसीबो सॉरी पी डायरेक्शन रे ही आसीबो ठीक। जदि आठटा पी डायरेक्शन रे आसिला मींस कोन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पी केते हैला को बिले ना एटी हैला 0 डिग्री ना विथ रिस्पेक्ट टू क्यू केते हैगला ना विथ रिस्पेक्ट टू क्यू हैगला 180 डिग्री। एटी भल से मन रखिबो कोन पई ए टाइप रा क्वेश्चन मेनली कोठी एग्जाम रे आसे ना ओजे एग्जाम रे आसे। तो ये डायरेक्टली किसी पी क्यू आ थीटा मेनली मु कहबी एंट्रेंस एग्जाम रे पी क्यू थीटा दिया ही नथिबो कोन पई को ना से भी चाहूची जे गोटे मिनिट रे केमती पिला 3-4टा क्वेश्चन अटेंड करू ठीक। तो एमती भाव रे क्वेश्चन आसीबो जोठी कि तुमको बहुत प्रॉब्लम फेस करबा को पड़िबो ठीक। तुमको सेठी दिया हेतिबो ना कोन ना फोर्स एक्टिंग इन अ सिंगल लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द फोर्सेस आर व्हाट द समथिंग 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट एंड देयर इंक्लिनेशन। तो सेठी आमे यदि केस 1 केस 2 केस 3 जदि आमे भल से आमे जानि छी तो आमे डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन कोन करि परिबे ना आंसर को क्लिक करि परिबे ठीक ओके। देन कम टू द नेक्स्ट केसेस दैट इज व्हाट द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इट मींस व्हाट द एंगल बिटवीन द टू फोर्स इज 90 डिग्री और इट मींस द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जदि दीटा फोर्स कोन अछि एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस केते अछि ना 90 डिग्री अछि दैट इज द थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अछि। तो ताहाले हमें बे काढिबा कोन व्हाट इज द रिजल्टेंट कोठी बारिबो ऑब्वियसली इन बिटवीन द फोर्स पी एंड क्यू ही बाहरिबो। तो हमें रिजल्टेंट बाहर करिबा आ कोन बाहर करिबा ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पी भी बाहर करि परिबा आ क्यू भी बाहर करि परिबा ठीक। तो फर्स्ट हमें रिजल्टेंट बाहर करिबा। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू व्हाट हमें आगुरु जानि छे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा द रूट ओवर इक्वल टू थीटा इक्वल केते पकेबा 90 डिग्री हमें जानि छे कोन ना cos 90 डिग्री इक्वल टू हाउ मच 0 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रूट ओवर ठीक। तो एठी हमें डायरेक्टली मने रखिया को चेष्टा करिबा इफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द रिजल्टेंट इज व्हाट द रिजल्टेंट इज द सम ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ द टू फोर्सेस रूट ओवर। then what is the resultant the summation of the squaring of the two forces। तो दीटा फोर्स कौन हम स्क्वायर को ऐड करके तार रूट ओवर करेंगे जहाँ पाइबे सेटा होची कौन तार तार रिजल्टेंट ठीक। तो ये मन रखा कौन पाई ना एटा भी एंट्रांस आसबार प्रोबेबिलिटी अच्छी कौन पाई ना सेठी दिया ही नथिबो थीटा इक्वल 90 डिग्री खाली कहिथिबो कौन द फोर्सेस आर एक्टिंग इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सेठी हमें खोजबा कौन ना थीटा तो थीटा दिया ही हमें थीटा काढिबा केमती जदि भी जानिले पुणी कौन करबे ना कैलकुलेशन करबे स्टार्टिंग रु। तो स्टार्टिंग रु कैलकुलेशन करले निहाती भाबरे गोटे मिनिट कौन हेजिबो हमको दरकार पड़िबारे जदि हमें फाइनली जदि जानिथिबे ना कौन केस 3 रे जदि थीटा इक्वल 90 डिग्री हुए तो रिजल्टेंट केते ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होल रूट ओवर। तो सेठी हमें कौन करबे डायरेक्टली फार्मूला पके की आंसर बाहर करि पारिबे ठीक। तो रिजल्टेंट पाई गले एबे आसीबा कोठी की ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को आसीबा। तो फर्स्ट हमें बाहर करबा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स p। तो अल्फा बाहर करबा कोन ना विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स p। तो कोन हम को tan इनवर्स जेतु फोर्स p निया हला को फोर्स आसीबो अपोजिट फोर्सेस फास्ट आसीबो। तो थोरे कर देलो q sin थीटा आउ थोरे कर देलो q cos थीटा को फोर्स बंची गला p फोर्स बंची गला। तो ये हला तारा फार्मूला। तो एबे सब थीटा जगह मु केते पकेबी को ना 90 डिग्री ऑब्वियसली पके। तो tan इनवर्स ये गला कौन ना q sin 90 डिग्री बाय q cos 90 डिग्री प्लस p। अब मैं जानी छे कौन ना sin 90 डिग्री इक्वल टू 1
आउ cos 90 डिग्री इक्वल टू हाउ मच 0। तो एटा पके देले कोन मिल जिवो हमको ना tan इनवर्स sin 90 तो 1 तो ये हेगला हमर q cos 90 तो 0 तो ए टर्मटा कंप्लीटली 0 हो जिवो तो बाकी बंची गेला किए ना p। तो एबे मने रखो देखो एटी गुटे आमे कोन ना शॉर्ट फार्मूला रे आमे बाहर करि परबा जदि मने करो हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मागी छी आ p आ q फोर्स दिया है छी आ सेतरे कोहा छी कोन ना एंगल बिटवीन द टू फोर्स 90 डिग्री। तो आमे डायरेक्टली अल्फा देखो केमती बाहर करबा गुटे शॉर्ट फॉर्म रे tan इनवर्स q बाय p रे बाहर कर दे। ठीक तो एति की जो आमे स्टेप बाहर करतले एति की स्टेप आ हमको आसीबको पड़िबो नाही। तो एबे मते डायरेक्टली कहो ना अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू q को हबो विथ रेस्पेक्ट टू q को हबो फोर्स q। तो कौन करिबा ना तार लेटर को चेंज कर देबा कौन हिजबो ना tan इनवर्स p बाय q सरला। ठीक देन कम टू द नेक्स्ट केसेस when p equal to q means the force are of equal magnitude। ठीक जदि p आउ q रो फोर्स इक्वल अछि ता माने थीटा एठी किछि भी हे पारे थीटा रो ता माने कोन किछि दिया हैतो। ठीक एठी थीटा रो किछि एंगल नाही एंगल क्वेश्चन दिया हैतो से खाली कहउछि ना p इक्वल टू q हेले रिजल्टेंट आउ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ता कोन हबो। ठीक तो हमें जानि जे कोन ना r इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रो होल रूट ओवर। ठीक तो हमें जानले कोन ना p इक्वल टू q तो हमें आइदर p को q नहीं परबा नाले q को p नहीं परबा तो मु कोन करछि ना q को मु p नहीं जाउछि। तो ये हेगला p स्क्वायर प्लस q को मु p नेली सेति पय कोन हेगला p स्क्वायर हेगला तो 2p इनटू p cos थीटा तो रूट ओवर। तो ये कोन हेला p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हेगला 2p स्क्वायर ये कोन हेला p इनटू p होछि स्क्वायर तो ये भी कोन हेला ना 2p स्क्वायर। अब फाइनली के बंची गला ना cos थीटा और रूट ओवर एटी के कॉमन जीवो ना 2p स्क्वायर कॉमन जीवो तो 2p स्क्वायर को कॉमन नेली ये हेगला कोन ना 1 प्लस cos थीटा। ठीक बट हमें 1 प्लस cos थीटा को पुणी हमें कोन करिवे ना इलाबोरेट करिवे 1 प्लस cos थीटा पुणी हमें क्लैरिफाई करिवे ना हमें जानि से कोन ना cos 2 थीटा इक्वल टू हाउ मच 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आउ सेमती cos थीटा इक्वल टू कोन हे जिवो ना 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 कोन पाई ना एठी थीटा जगह रे 2 थीटा जगह रे थीटा हला तो एठी भी कोन हबो थीटा जगह रे जेमती हला बाय 2 हबो तो माइनस 1। तो हमको दरकार केते ना 1 प्लस cos थीटा तो 1 प्लस cos थीटा हमें के पाइले केते ना 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तो एटा हमें कोथरे पकेबा फाइनली एथरे पके देबा तो फाइनली पाइले केते ना 2p स्क्वायर इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 द रूट ओवर। तो 2 इनटू 2 केते 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हला। तो हमें एठी देखो एठी अछि 4 तो 4 रो रूट ओवर केते हबो 2 हबो p स्क्वायर रूट ओवर केते हबो p हबो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 रो रूट ओवर केते हबो ए cos थीटा हबो। तो फाइनली कोन पाइले ना r इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 2 तो ये हला हम कोन ना प्रॉपर आंसर। ठीक तो जेतेबेले हमको दिया होची कोन ना फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड तो सेतरा में डायरेक्टली मन रखिबा फॉर ओजे एग्जाम तो r इक्वल टू कोन ना 2p cos थीटा बाय 2 तो आंसर सरला। ठीक तो एबे जिबा हमरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट को तो अल्फा मु बाहर कली सपोज विथ रेस्पेक्ट टू p बाहर कली तो अल्फा टा कोन हे जिवो tan इनवर्स q sin थीटा बाय q cos थीटा प्लस p। तो एबे हमें जान p इक्वल टू हमें q करछि तो एठी भी कर देबी tan इनवर्स ये हला हमरा p sin थीटा ये हला हमरा कोन ना p cos थीटा आ ये हला हमरा कोन ना p। तो फाइनली पुणी कोन करबी ना tan इनवर्स ये हला हमरा p sin थीटा एठी कोन कॉमन जीवो ना p कॉमन जीवो p कॉमन गले ये कोन हे जीवो
ना cos थीटा प्लस 1 तो पी पी कैंसल आउट तो फाइनली केते पाई गली को ना tan इनवर्स sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 एथरे पुनी कोन पकेबी पुनी आउ थरे पकेबी कोन आमे जानि छै एटा कोन 1 प्लस cos थीटा इक्वल हाउ मच 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तो मु एथरे पकेली कोन ना पुनी tan इनवर्स sin थीटा जगह पके परिबे आमे पुनी जानि छै कोन ना sin 2 थीटा इक्वल टू व्हाट 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बट हमको दरकार कोन ना sin थीटा दरकार तो sin थीटा इक्वल टू कोन हे गला 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 तो एटा पके देबी तो कोन हे गला 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 बाय ए जो 1 प्लस cos थीटा को कते पकेबी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तो देखो एटी cos थीटा बाय 2 अछि cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तो गोटे कट कैंसिल हे जिवो एटी 2 2 कैंसिल हे गला तो बाकी बंचिला किए tan इनवर्स sin थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 तो sin बाय cos हमें जान छे कोन ना tan तो कोन हे गला tan इनवर्स tan थीटा बाय मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रूल जान छे कोन ना tan इनवर्स tan केते ना कैंसिल हे जिवो तो फाइनली केते बाला ना थीटा बाय 2 ठीक तो एथरे गोटे जिंस मार्क करो जदि आम रियल केसेस भल से जानी तो आम फाइनाली गोटे मिनिट भी लगे कि 10 सेकंड भी लगे आराम से आम आंसर को क्लिक कर पारिबा ठीक तो देखो ये रिजल्टान जदि मागी सॉरी एंगल ऑफ इनक्लिनेशन रिजल्टान मार्क करछि तो आम पूरा हमको होल स्टेप करिया को पड़ता ठीक पूरा हमको होल स्टेप करिया को पड़ता जो कि मैक्सिमम टाइम हमर यूज होता बट जदि आम कॉन्सेप्ट जानिचे केसेस जानिचे तो आम कौन कले डायरेक्टली दिया है सेठी कौन ना if the two forces are of equal magnitude and angle between the two forces 180 degree तो मते जे पचारला अल्फा इक्वल टू व्हाट डायरेक्टली मु कोन कहि देबी आखी बुझी कि मु कहि देबी ना व्हाट 60 डिग्री सरला ठीक तो एटा थिला हमरा कोन ना चारटा केसेस ए केसेस को भल से देखिबो फॉर जदी किछि डाउट बाहरची कि जदी किछि प्रॉब्लम होची देन आस्क मी डायरेक्टली इन कमेंट सेक्शन तो एमती किसी स्किप करबनी जब तुम प्रिपरेशन कर ठीक से प्रिपरेशन कर कौन पे सब किसी मुझे डिस्क्रिप्शन करवा डिस्क्राइब कर पारुनी जहाँ आसला सेटा ही मुझे डिस्क्राइब कर पारुची जदि आउ किसी डाउट कि किसी बाहरला कि किसी प्रॉब्लम रिलेटेड किसी प्रॉब्लम आसलानी कि किसी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होची रिलेटेड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स तो सेटा मते कमेंट सेक्शन रे डायरेक्ट पोस्ट करके कमेंट करि पारो ठीक तो एटा थिला कोन हम टोटल अबाउट द फास्ट एनालिटिक मेथड दैट इज व्हाट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस एंड देयर वेरियस केसेस. So please do like, share, comment and never forget to subscribe our channel for latest update. Keep watching. Thank you.